लोगों को डिफरेंट हस्तियों के साथ मिलाऊँगा जो अपने डिफरेंट लाइफ के शोबों में आगे बढ़े हुए हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ किया है। तो पहली सीरीज़ में जिस तरह से मैंने आप लोगों को डॉक्टर शब्बीर हसन के साथ मिलाया, तो आज मेरी गेस्ट जो है वो हुमा सजाद शाह साहिबा है। तो उन्होंने क्वेटा पाकिस्तान से बिलॉन्ग करती है। इनके सीवी में काफ़ी कुछ है, जैसे कि ये ऑथर है, इन्होंने मास्टर्स कॉमर्स में किया हुआ है, ये टीचर भी है, इन्यूमरेटर भी है, ट्रैवल काउंसलर भी है, बैंकर भी है, कंटेंट राइटर भी है और सोशल वर्क भी करती है। जी, हुमा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या Assalamualaikum. मकदम है? How are you, Javed? आई एम फाइन, Thank आप you so much बताएं। for inviting me. This is my first ever experience with someone like that, live. गुड। तो आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा-सा अपने बारे में बता दीजिए। मैंने तो वैसे जितना मुझसे हो पाया उतना इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की। आप इनको थोड़ा-सा अपने बारे में बता दीजिए। I basically belong to Quetta, Pakistan. That is known as very backward area, to be very honest, in Pakistan and around the globe. लोग नहीं ज़्यादा यहाँ पे तालीम हासिल करते थे, but the perceptions and the things have been changed. I did my masters in 2003. तब भी बहुत सारे लोगों को ये होता था कि लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, लड़कियां नहीं पढ़ती, but I did masters here from Balochistan University. Then I joined a Standard Chartered Bank as a relationship manager. मैंने वहाँ पे 2-2.5 साल जॉब की है. I also worked for Airblue as an as travel counselor. और मैंने उनको तब ज्वाइन किया था when they started their operations in Pakistan. वो बिल्कुल नया नया तब उन्होंने लॉन्च किया था अपना काम. So I was one of the first staff, the initial crew that they had here in Balochistan. Then I worked as an enumerator for National Institute of Population Studies, Islamabad. They basically work for providing data to IMF and all other international institutes. So that was also very great experience because that was the first time when I actually interacted with the people in interior Balochistan. मुझे वो मेरा जो कहना चाहिए जो मेरा सबसे ज़्यादा जो मैंने अब तक enjoy किया है काम, क्योंकि वो ऐसा काम था जहाँ जाके मैं ये कहूँगी मैं real लोगों से मिली. बैंक में आपके पास लोग आते थे, being a travel counselor when I dealt with people when I was in Airblue, वो भी एक specific class थी जो by air travel करती थी. लेकिन वो जो real हमारी जो है nation, जो roots हैं पाकिस्तान की, they actually live in interior areas, either it's बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और KPK. वो मैंने बहुत एंजॉय किया, मैंने बहुत सीखा वहाँ पे लोगों से कि किस तरह बहुत थोड़े सोर्सेज और रिसोर्सेज के साथ भी लोग शुक्र अदा करके अल्लाह का कैसे खुशी से जिंदगी गुजार सकते हैं. दैट वाज द बिगेस्ट लेसन आई लर्न ओवर देयर. और फिर I got married in 2006. So many people here do not know about that, and they keep on texting me. So I hope that after watching your video, I will not be getting those type of texts now. So I got married in 2006, and I hadn't married once, but I had married twice. I had some personal issues in my life, and it's over now. But that thing didn't make me down ever. Those were also lifetime lessons, and I believe that you cannot live your life while being stuck into your past. So I decided to live. I believe in living this moment. After going through some tough eras, I started writing and I started doing my own work. I actually deal in traditional attires, the complete range of traditional attires, and I love writing. I initially started writing to express just my feelings, and I just wanted to throw out whatever is hidden inside my mind and heart, whatever I was feeling. Yeah. So initially, I started writing for myself, but then I started using it as a medium for earning money. And whatever I am earning myself, I use it for helping other people's because Alhamdulillah, I am. My father is there and he's taking care of my everything. That's why whatever I'm earning, I used to give it to others and use it for charity purposes. जहाँ तक मैं देख रहा था कि आपके सीवी पे जब मैं नज़र दौड़ा रहा था, तो आपने ग्रेजुएशन के बाद से ही काम करना शुरू किया। क्या मतलब जल्दी थी आपको ग्रेजुएशन के बाद काम करने की? मतलब आप पैसे कमाना चाहते थे कि एक्सपीरियंस लेना चाहती थी तब? नहीं, to be very honest with you, actually, it's about my family. I belong to a family of monks. Basically, it's Sayyids. And my father is the eldest one in family. People who know us, they call him Pirji. They don't even know what is his real name. You know that what type of background Sayyids have, especially when they are monks. So I have 5 sisters, and no one has ever been out for setting their careers or work. So you can say that I was quite, rebellious type of person. I just wanted to go out.
कि बाहर ओके निकलना है, काम करना है, ये लोग क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं कर सकते? सो आई वांटेड टू गो आउट, दैट्स व्हाई आई डिड दैट। ओके, तो आपने तब एक्सप्लोर किया। तो हाँ। नहीं, नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है। फिर जिस तरह से आपने कहा कि मतलब आप जब अंदरूनी बलूचिस्तान में गए या बाकी डिफरेंट जगहों पे गए, जब आपने लोगों के साथ वहाँ पे गुफ्तगू की, किस किस्म का एक्सपीरियंस रहा? आप मुश्किलात देखी आपने लोगों के साथ वहाँ पे? मुश्किलात खासकर अगर हम बात करें तो जो लड़कियों की एजुकेशन को लेके वहाँ पे क्या टैबूज़ education, अभी भी है? let me tell you the specific areas I have been through. There is a village, people, mostly people do not even know about that, कि चमन से आगे और अफगानिस्तान बॉर्डर से पहले वहाँ पे एक पहाड़ों पे एक गांव था जिसका नाम था माकू कच। दैट वाज द एरिया आई हैव बीन थ्रू। लेकिन वहाँ पे जो सबसे मेरे लिए जो सरप्राइजिंग चीज थी, उनके पास थी, दे बेसिकली दोज पीपल वर इन कैटल फार्मिंग, और उनके हर्ट्स की हिफाजत के लिए जो उन्होंने रखा हुआ था, दोज वर नॉट डॉग्स बट वुल्व्स। फर्स्ट टाइम एवर इन माय लाइफ आई सॉ वुल्फ इन फ्रंट ऑफ मी। They were not having dogs for that. And the other area that I have been through after that, that is near Iran border, that is known as Yakmach. वहां पे मैं गई इन दो जगहों पे, और तीसरा फिर था पशीन के आगे, वो भी अगेन पहाड़ों में अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब एक किल्ली है, दैट इज नोन एज किल्ली शब्जई। इन तीनों एरियाज का अगर मैं वो करूं एनालिसिस के, उसमें सबसे ज्यादा जो औरतों को प्रॉब्लम थी, दैट वाज नॉट एक्चुअली एजुकेशन, क्योंकि पढ़ाई समझ कहीं ना कहीं इंसान को एज के हिसाब से साथ साथ कुछ ना कुछ आई जाती है। आपको इर्द गिर्द का माहौल और माशरा बहुत कुछ सिखा देता है विदाउट हैविंग अ डिग्री। लेकिन उनको जो बेसिक इश्यूज थे, जो मुझे लगता है जो वो फेस कर रहे थे, और आई होप कि वो अब ना कर रहे हो, वो मेडिकल इश्यूज थे। उनके पास कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी, कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, जो जितनी देर में उन्होंने गांव से या अपने इलाके से शहर पहुंचना था, दे couldn't survive so many ailments. So I just wish कि अब ये चीज ना हो। लेकिन ये एक चीज जो वहाँ बहुत ज्यादा लैक करती थी, वो मेडिकल इश्यूज थे। मेडिकल फैसिलिटीज थी नहीं वहाँ पे, जीरो, -0। तो आपकी जो बाद में जो राइटिंग्स वगैरह आ गई, क्या उस चीज़ में उन सारी चीज़ों का कोई इन्फ्लुएंस रहा कि नहीं आपने अपने से फ्रीली लिखा? मैंने बेसिकली, मैंने आपको बताया ना, स्टार्ट किया मैंने राइटिंग इन 2015 आफ्टर माय डॉटर्स डिमाइस। आई हैड 2 किड्स दैट आई लॉस्ट, और मैंने अपनी बेटी के बाद लिखना स्टार्ट किया था। तो उसमें बेसिकली मैंने लिखा सोसाइटी के लिए ही लिखा, उसमें उन लोगों के लिए नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। लेकिन मैंने अपने एंड पे जो किया है, वो ये मैंने आपको बताया कि मैं जो भी कमाती हूँ, मैं उसको अल्लाह के नाम पे दे देती हूँ। मुझे लगता है अल्लाह पाक शायद चाहता ही यही है, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ करने के लिए मेरे वालिद को अल्लाह ज़िंदगी दी, वो बैठे हुए हैं। मैं खुद आई ट्राई टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ एरियाज, दिस टाइप ऑफ पीपल, जो मुझे लगता है कि लोगों की कांटेक्ट से भी बाहर हैं, और शायद बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां हमारे लोग जाना ही नहीं चाहते। बातें तो बहुत करते हैं, देयर आर सो मेनी एनजीओ, स्पेशली इफ यू बी टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल वन, यूएन और सेव द चिल्ड्रन, ये सबसे ज्यादा इधर बलोचिस्तान में काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मुझे ये लोग कहीं भी नजर नहीं आते, सॉरी टू जी। से, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, कि कहीं भी नजर नहीं आते। तो मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि अगर मुझे पता है किसी का, that person or that family needs me, I can make a difference in their lives, so I try to reach them myself. मैं नहीं बोलती किसी को भी, मैं खुद जैसे करती हूँ। जैसे अगर मैं सपोज़ आपके एक्सपीरियंसेस अपने वाले एरिया में सपोज़ ट्रांसलेट कर दूँ, हालाँकि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे बेटर कंडीशंस में हैं हमारे यहाँ। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि आप डिफरेंट तरीके का काम करते हैं कि जैसे इस टाइम जो हमारे काफ़ी सारी ख़वातीन हैं, जो पढ़ी-लिखी है, अगर एक ना चाहे मतलब जॉब एवेन्यूज़ ना होने की वज़ह से कुछ इस वक़्त ना कर रही है, तो आप उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगी? मतलब किस तरह का वो काम कर सकते हैं घर से जो जिससे वो इज़्ज़त से मतलब अपना आगे कुछ जॉब हो या कुछ और हो प्रोफाइल खड़ा कर सके। Javed, the only one message that I want to give everyone, not just women but men also, नहीं और इम्पॉसिबल, ये दो वर्ड्स ना अपनी डिक्शनरी से निकाल दें। आप जी, सोचेंगे ना ये इम्पॉसिबल है, तो आप खाने का एक निवाला भी मुंह में नहीं डाल सकेंगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, तो मैं करूंगा कैसे। तो नहीं और इम्पॉसिबल लाइफ में होना ही नहीं चाहिए। आपने जी, अगर अपना माइंडसेट बनाया है ना कि मुझे कुछ करना है और मैं कुछ कर सकता हूँ, जस्ट गो फॉर इट। सोचे नहीं इस चीज पे। और अगर कोई पॉजिटिव चीज है, फिर तो बिल्कुल ही ना सोचें, क्योंकि ये हमने ही डिसाइड करना है, हम बच्चे नहीं है क्योंकि हमें गाइड करेगा। आप, मैं, हमारी एज के लोग, वी आर नॉट किड्स, हमें किसी ने गाइड नहीं करना। अगर हम भी नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकते व्हाट इज गुड एंड बैड, तो फिर तो शेम ऑन अस। हमारी डिग्रीज का और हमारे इस एज में आने का कोई फायदा ही नहीं है। दूसरा, इन दिस टाइम ऑफ क्राइसिस व्हेन पीपल आर फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट और जॉब्स नहीं है और जो घर में बैठे हुए हैं,
ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज हैं, मैं अपना सारा काम ऑनलाइन करती हूँ. I hardly go outside. The reason being, I told you that I call my parents my babies. So many people out there who do not know this, they will be knowing this now कि मैं babies अपने माँ बाप को कहती हूँ. My father would be 80 when my mother would be 70 inshallah ताला this year. मैं उनको छोड़ के लंबे टाइम के लिए बाहर जाना अफोर्ड ही नहीं कर सकती. So how I am doing my work, मैं अपने जितने भी काम कराती हूँ, obviously I had to meet with the people who are working for me. लेकिन हर वक्त उनसे नहीं मिलना पड़ता मुझे. अब मेरी एक टीम है, मुझे कोई ऑर्डर मिलता है, आई जस्ट कॉल देम, यार ये काम है, ये कर दो, और उनकी आसानी के हिसाब से मैं चलती हूँ. लाइक इफ यू विल बी ऑर्डरिंग मी फॉर अ ड्रेस, मैं कभी भी ये प्रेफर नहीं करूंगी कि जावेद इस टाइप ऑफ टाइकून और सम स्पेशल पर्सन और मुझे इसके लिए हड़ी दुड़ी में काम कराना है. नो, मैं अपने वर्कर्स की कन्वीनियंस देखती हूँ, वो इजीली किस चीज को किस हिसाब से लेके चल सकते हैं. आई गो विद देयर ईज, आई जस्ट गिव देम अ कॉल, मेरा काम भी हो रहा है, उनका भी हो रहा है, व्हाइल स्टेइंग एट होम. तो चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं. दिस इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट कि आप इन चीजों को किस तरह लेके चलते हैं. देन माय सेकंड वर्क इज राइटिंग. मैंने 2 ई बुक्स लिखी हैं, तीसरी पे मैं अभी काम कर रही हूँ. मैंने लोगों के लिए लिखी, नॉट फॉर माई सेल्फ. मार्केटिंग कॉन्टेंट्स लिखे हैं, और वो काम भी मुझे 2 जो है वो मुझे लिंक्डइन से मिले. आई एम ग्रेटफुल टू लिंक्डइन फॉर दैट. और बाकी जो है वो मुझे रेफरेंसेस से मिले, लाइक माय फ्रेंड्स, माय फैमिली, दे रेफर मी टू पीपल कि यार ये काम करती है तो इसको दे दो. तो वो मुझे रेफरेंसेस से मिले, बट अगेन इट्स ऑनलाइन. लोग मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं और मैं उनका काम करके उनको मेल कर देती हूँ. सो इट्स ऑल अबाउट सेटिंग आवर प्रायोरिटीज एंड टाइम मैनेजमेंट. आप काम को लेके किस तरह चलते हो, किस हिसाब से चलते हो, बिकॉज बीइंग अ वुमन, स्पेशली इट्स अबाउट वुमेन नाउ, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर फैमिलीज एंड होम्स ऑल्सो, एंड दैट शुड बी आवर प्रायोरिटी. फैमिली कम्स फर्स्ट. दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई मदर. सो मेरे माँ बाप सबसे पहले, उसके बाद मैं अपना टाइम मैनेज करती हूँ कि मेरा काम भी सफर ना करे. And then I'm going great, I believe. I'm going great, alhamdulillah. तो इन अदर वर्ड्स आप यहाँ पे ये कह रहे हो कि जितने भी सारे व्यूअर्स है कि मतलब जिस तरह से सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, बाकी चीजें यूज कर रहे हैं, तो आप टाइम बीइंग अगर 1-2 घंटे इनको प्रोडक्टिव वे में भी यूज करें, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे कोई और हो जहाँ से आप देखते हो, मतलब जो भी आपको लगे काम आप घर से स्टार्ट कर सकते हो, कर लो. मतलब डरो नहीं कि आगे क्या होगा इस चीज का. और देखें, वी वर नॉट बॉर्न परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट इन दिस यूनिवर्स. गलतियां सब करते हैं, ना आप कोई सेंट है, ना मैं कोई सेंट हूँ, और ना जो भी काम स्टार्ट कर रहा होगा वो कोई सेंट है. गलतियां करेंगे तो सीखेंगे, वरना सीखेंगे कैसे? दूसरों की गलतियों से सीखें. दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न. और अगर दूसरे कोई ऐसे आपके कॉन्टेक्ट्स में नहीं है तो करें गलती यार, हम खुदा नहीं है, हमने गलतियां करनी है, गलतियां करके सीखें, लेकिन फिर ये कि उन गलतियों को रिपीट नहीं करें. जी, तो मतलब ये आपका मतलब इस तरह, तो जिस तरह से आपका एयरलाइन वगैरह का रहा है, तो मतलब इन अदर वर्ड्स आप कह रहे हो कि ऐसा नहीं है कि एक औरत घर बैठ के मल्टीपल काम नहीं कर सकती है, वो कर सकती है. बिल्कुल. इट्स ऑल अबाउट योर विल एंड माइंडसेट. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. एंड टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वही बात आ जाती है, बीइंग अ वुमन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली. आप अगर सिंगल भी हो तो आपने अपने पेरेंट्स और अपने घर वालों के पास तो आना है ना, चाहे आपके पास सारी फैसिलिटीज हो, आपने कुछ ना कुछ करना होता है घर आके. So just make your family your priority, and time management is necessary. Then make your mind that if you are doing a particular thing, just go for it. You are willing to do it, just go for it. अगर जो यूथ आपको इस टाइम सुन रहा है, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेगी कि मतलब किस तरह से आप जिंदगी में आगे बढ़े और क्या-क्या चीजें साइड में रखें, क्या प्रेफरेंसेस आगे करें? अपनी फैमिली को अपनी प्रायोरिटी बनाएं. किसी भी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करें अपनी फैमिली पे. इधर इट्स योर पेरेंट्स, योर लाइफ पार्टनर्स एंड हूएवर. दूसरी चीज, पॉजिटिव रहें. Even in such type of situation like we are facing corona right now, we globally facing it, but around the globe it's a pandemic, everyone is facing that. Do not let negativity get over you. हमेशा पॉजिटिव रहें कि अगर ये सख्त वक्त आया है तो अच्छा वक्त भी था, और अगर ये सख्त वक्त आया तो ये भी गुजर जाएगा और अच्छा फिर आएगा इंशाल्लाह ताला. अपना बेस्ट दें, बजाय लोगों को क्रिटिसाइज करने और कंपैरिजंस और जजमेंट के. अपने आप को देखें, शीशे में एक दफा खड़े हो जाया करें जब आपका दिल कर रहा हो जज करने को और क्रिटिसाइज करने को. तो वो जो शीशे में सामने बंदा नजर आए ना, उसको क्रिटिसाइज करें, उसको जज करें कि क्या क्या लैक कर रहा है ये और मुझे कहाँ कहाँ इसको ठीक करने की जरूरत है. उसको बताएं सारी चीजें ताकि वो ठीक करे. और तीसरी चीज, ये इम्पॉसिबल का वर्ड निकाल दें अपनी लाइफ में से. देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन लाइफ. लिव इन दिस मोमेंट. Do not take your past with you all the way along in your life. आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे अगर आप अपना माजी लेके अपने साथ चलेंगे. अल्लाह पे यकीन रखें, और whoever your Lord is, यकीन रखें उस पे कि whatever has happened, but nothing like that would be ever happening in your life again.
stay positive and go for whatever you want to do. Definitely things would be getting better. आप आखिर पे कोई मैसेज देना चाहेगी जो इस वक्त कोविड-19 के क्राइसिस चल रहे हैं, जो भी व्यूअर्स आपको सुन रहे होंगे आपकी ओर से, अगर उनके लिए कोई मैसेज है? I just have a request, not a message. Please, please, please stay home, stay safe. It's not about others. It's about yourself. If you would not be safe, you would not be able to take care of other people's also. So please, please, please stay safe and stay at home. जी, जैसे कामीन आपने सुना कि जैसे हुमा साहिबा ने हम लोग को मैसेज दी, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जो मतलब ख़ासकर हमारी ख़वातीन वाले तबके के साथ जुड़ी हुई थी। तो जिस तरह से एक टेक होम मैसेज है कि ये वक़्त गुज़र जाएगा। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ आऊँगा। तब तक